So, today I am going to discuss with you all about the anther and pollen culture. Well, anther and pollen are those part of the plant which have the haploid number of chromosomes, and if we culture those anther and pollen in tissue culture by the same process, just little bit modification of the culture medium in the lab, we can able to produce plants which will have haploid number of chromosomes. So the main chapter here is your production of haploid plants. Well, this notes has been taken from your U Satyanar book of biotechnology. So normally, what does haploid plants are being said here? But before that, we have to understand some things of about your the anther and pollen. Some terms are there. So the first thing that we have to see is about gametophyte, sporophyte, gametophyte. This type of terms will come in this chapter. So we have to clarify it first. What is gametophyte first? Gametophyte produces the male and female gametes. Okay, gametophyte produce the male and female gametes, which are the sex cells, and these gametes will be fused to form a zygote, which in turn give rise to a diploid sporophyte. Now this is the sporophyte that you can see here, sporophyte. So gametophyte having the haploid number of chromosomes, having half of the set of chromosomes produced by the, and it produces the male and female gametes. These gametes will further fuse to form a zygote, which will have both sets of the chromosome from father and mother. That means the zygote will become diploid, and further this zygote give rise to a diploid sporophyte. Sporophyte further generates haploid spores. Each of these haploid spores will again give rise to gametophyte. So simple thing, gametophyte are the haploid sets of chromosome, and these gametophyte will produce the male and female gametes, which are the pollen in case of male, and in female that is the ovum. These gametes, the pollen and the ovum, they fuse by double fertilization. You have studied in plant physiology, you have studied in your junior classes in class 9, 10. So by the process of double fertilization, these male and female gametes fuse to form a zygote. Zygote having two sets of chromosome. This zygote will give them rise to diploid sporophyte. Now this diploid sporophyte having two sets of chromosome, one set from the mother, another set from the father, this sporophyte will generate the haploid spores, and each spores will again give rise to a gametophyte. So gametophyte produce the male and female gametes, that's okay, but actually what is gametophyte? Look at your right side. Gametophyte is one of the two alternating phase in the life cycle of plant and algae. Gametophyte is a haploid, I have already said. It is a haploid multicellular organism, and this gametophyte develops from haploid spore. I have said now that each haploid spore will give, each spore will give rise to gametophytes. So gametophyte is a haploid multicellular organism that will develop from haploid spore that has one set of chromosomes, and gametophyte is the sexual phase in the life cycle of plants and algae. So from
haploid spore, it produces gametophyte. Haploid spore, as the name suggests, it is N, that is having one set of chromosome only, and from that haploid spore we get the gametophytes, and from that gametophyte we will get the gametes, the sex cells, the pollens and the ovums. So I have said about the gametophyte that gametophyte will produce the male and female gametes, and these gametes will fuse to form the zygote, and this zygote will further division, it will give rise to a diploid sporophyte. Now this diploid sporophyte will further can generate haploid spore, and from this haploid spore it will again give rise to a new gametophyte. What is sporophyte? Let us see. Sporophyte is the diploid multicellular stage that arise from the gametophyte. I have said that two gametophytes that produce gametes, they fuse to form zygote. Zygote having two sets of chromosome, and this zygote will further divide to form sporophyte. So sporophyte is a diploid multicellular stage in the life cycle of plant or alga. Sporophyte will develop from zygote produced when haploid cell is fertilized by a haploid sperm. Same thing means घुमा फिरा कर वही लिखा है that sporophyte develops from zygote. आ zygote तो मालूम है कैसे होता है, गैमेटोफाइट से आता है, गैमेटोफाइट से गैमेट होता है, वो गैमेट फ्यूज होकर स्पोरोफाइट डेवलपमेंट करता है, एंड फ्यूज होकर जाइगोट बनता है पहले, फिर जाइगोट फर्दर डिवीजन करने के बाद स्पोरोफाइट बनता है, एंड ईच स्पोरोफाइट सेल्स हैज double sets of chromosome from each parent, right? But here what we will do, here we will produce the haploid plant. Okay, we will produce the haploid plant, we will culture only the pollen and the anther, not the other parts of the plant. We will try to eliminate them, we will try to remove them, हटाने की कोशिश करेंगे जो टिश्यूज़ वगैरह जो फर्दर डिवीजन कर प्रॉब्लम कर सकता है. हम लोग का मकसद यही है कि हाप्लॉइड प्लांट बनाएंगे फ्रॉम द पोलेंस फ्रॉम द ओव्यूल्स. सो कैसे बनाएंगे, लेट अस सी. सो इसका चार्ट भी है जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ. ये और भी अच्छे कर रिप्रेजेंटेशन कर दिखाया जा सकता है. इसका पिक्चर है, मैं दिखा रहा हूँ. वेट फॉर ए मिनट, वेट. ओके, नहीं वही यहाँ पर नहीं है. ठीक है, मैं बाद में ये लिख कर दिखा दूँगा. ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर कैसे होता है मैं दिखाया था, कैसे गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट होता है. स्पोरोफाइट फर्दर हाप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल बनाता है, हाप्लॉइड स्पोर बनाता है, और वही हाप्लॉइड स्पोर से न्यू गैमेटोफाइट अराइज करता है, और अगेन वही गैमेटोफाइट फिर गैमेट्स बनाता है, सेक्स सेल्स बनाता है. मेल के लिए पोलेंस बनाता है, फिर फीमेल के लिए ओवम बनाता है, फिर वो फर्दर फ्यूज होकर जाइगोट बनता है, फिर वही जाइगोट फर्दर डिवीजन कर फिर से न्यू स्पोरोफाइट बनता है. तो इस तरह से सर्कुलर वे में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट मेंटेन हो रहा है. तो ये बताना ज़रूरी था क्योंकि हम लोग हाप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करेंगे. सो हाप्लॉइड प्लांट्स आर characterized by possessing only a single sets of chromosome. So we will try to produce the haploid plant which have only single set of chromosome, that is the gametophytic number of chromosome. जो gametophyte में है एक सेट ही होता है, वन सेट फ्रॉम द पेरेंट. गैमेटोफाइटिक सेल्स में हाप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहता है, एक ही सेट रहता है, दैट इज एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, स्पोरोफाइट में टू सेट्स रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे गैमेटोफाइट जो सेल्स है उसको कल्चर कर हम लोग हाप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करेंगे.
दिस इज कॉन्ट्रास्ट टू डिप्लॉयड्स विच हैज़ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। नाउ हाप्लॉइड प्लांट क्यों बना रहा हूँ हम लोग? प्योरिटी मेंटेन करने के लिए। In genetics, I have said about the dominant and the recessive. I have said about the homozygous and the heterozygous. होमोजाइगस में क्या होता है, जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है वो पेरेंट्स से आता है, कोई मिक्सचर नहीं है, कोई दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जो उस जो अलग पेरेंट है जो फर्टिलाइज़ किया है उसका कोई क्रोमोसोम्स वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा। इंटरफेयर मतलब एक्सप्रेशन नहीं करेगा। यहाँ पर हाप्लॉइड प्लांट्स पेरेंट्स का जो फीचर्स है, जेनेटिक कंटेंट है, वही एक्सप्रेस करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। सो हाप्लॉइड प्लांट्स आर ऑफ इम्पोर्टेंस, ग्रेट इम्पोर्टेंस, राइट, ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस लाइन्स and for the improvement of plant in plant breeding programs। तो हाप्लॉइड प्लांट क्यों हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग वो होमोजाइगस लाइन्स को मेंटेन कर रहे हैं, टू मेंटेन दैट प्योरिटी ऑफ द gametes, so that they get all the genetic material from their parent only, from their mother plant only, okay, not from by cross pollination with the other parents, okay। तो यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली एसेक्सुअल वे में ही हम लोग टिश्यू कल्चर करते हैं, यहाँ पे कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेंगे, ओके। ओके, सो टू मेंटेन दैट प्योरिटी ऑफ दैट लाइन्स वी आर प्रोड्यूसिंग द हाप्लॉइड प्लांट्स, और ये इम्पोर्टेंस है मेंटेन करने के लिए, ओके। ब्रीफ हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ। इट मे बी नोटेड दैट व्हेन द टर्म हाप्लॉइड is generally used, it applies to any plant orienting from sporophyte and containing half number of chromosomes। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाप्लॉइड जो प्लांट बना रहा हूँ हम लोग टिश्यू कल्चर थ्रू से, इट अप्लाइज टू एनी प्लांट, कोई भी प्लांट से कर सकेंगे, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से हम लोग वो गैमेटोफाइट बनाएंगे and that will contain the half number of chromosomes। तो गैमेटोफाइट सेल से जो हम लोग बना रहे हैं हाप्लॉइड प्लांट, वही हाप्लॉइड प्लांट का जो स्पोरोफाइट होगा उसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। नॉर्मल जनरली स्पोरोफाइट में 2n रहता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड है स्पोरोफाइट। लेकिन हाप्लॉइड प्लांट बनाने के बाद आफ्टर प्रोड्यूसिंग द हाप्लॉइड प्लांट देयर स्पोरोफाइट विल कंटेन हाप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस तरह से प्लान बनाएंगे, राइट, स्टेराइल प्लान बनाएंगे, लेकिन उसका जो फीचर्स है, जेनेटिक फीचर्स है, वो सेम लाइक पेरेंट होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका फेनोटाइप्स। नाउ इन विवो एंड इन विट्रो अप्रोचेस, बहुत सारा इन विवो एंड इन विट्रो अप्रोचेस है। इन विवो का मतलब कल्चर के मतलब लैब के बाहर भी इस तरह का हाप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन किया जा सकता है, एंड इन विट्रो भी किया जा सकता है, जो हम लोग पढ़ेंगे मेनली। तो इन विवो का टेक्निक क्या क्या है, वही सेम टर्म है जो इन विवो में है, वही इन विट्रो में भी है, लेकिन इन विवो में हम लोग बाहर में कल्चर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी एसेप्टिक कंडीशंस, ओके। ग्रीन हाउस में करते हैं, लार्ज ग्रीन हाउस का मतलब जानते हो, लार्ज एक शीट्स रहता है छत के ऊपर जो ओनली सन रे को अलाउ करता है अंदर घुसने के लिए, ओके। और वही जो सन रेज का जो वार्मथ है वो अंदर घर में रह जाता है बहुत समय के लिए। सो देयर आर सेवरल मेथड्स टू इंड्यूस हाप्लॉइड प्रोडक्शन इन विवो एंड सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। पहला जो है उसका नाम है एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस का मतलब क्या है? एंड्रोजेनेसिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ अ एग सेल containing the male nucleus to produce haploid plant। एंड्रोजेनेसिस का मतलब है हम लोग एग सेल से, जिस एग सेल में मेल न्यूक्लियस रहेगा, किस में रहता है मेल न्यूक्लियस? पॉलिन्स में रहता है, पूरा की पूरा एंथर में रहता है, ओके। तो वो वही हम लोग कल्चर करेंगे टू प्रोड्यूस अ हाप्लॉइड प्लांट। तो यहाँ पर एक्सप्लांट जो होगा एंड्रोजेनेसिस में वो एंथर होगा, और या तो एंथर को क्रॉस कर पॉलेंस को हम लोग कल्चर करेंगे। इन विवो में भी करेंगे, इन विट्रो में भी करेंगे, देखो वही सेम नाम रहेगा,
androgenesis. So we are culturing the male gamete cell, okay, to develop into a haploid plant. That is called as androgenesis. Answer से androgenesis. For a successful in vitro androgenesis, egg nucleus has to be inactivated और eliminated before fertilization. ये ध्यान में रखना होगा ताकि जो तुम्हारा मेल का जो गैमेट सेल है, उसका जो एग न्यूक्लियस है, वो उसको इनएक्टिवेट करना होगा ताकि वो फर्टिलाइज ना कर सके उस ओवम को, फीमेल को। जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तब उसके पहले ही हम लोग उसे इनएक्टिवेट करके हम लोग एंड्रोजेनेसिस करेंगे, हम लोग उसको एक्सप्लांट यूज़ करेंगे। एंड जैसे हम लोग करते हैं टिश्यू कल्चर मीडियम में, ग्रो करेंगे लैब में, ओके, विथ कंट्रोल कल्चर कंडीशंस। सो सिंपली थिंग, एंड्रोजेनेसिस मतलब डेवलपमेंट ऑफ अ एग सेल containing the male nucleus to produce a haploid plant, that is called androgenesis. नेक्स्ट जो है उसका नाम है गाइनोजेनेसिस। गाइनोजेनेसिस का मतलब एन अनफर्टिलाइज एग कैन बी मैनिपुलेटेड, मतलब रेगुलेटेड बाय डिलेड पॉलिनेशन टू डेवलप इनटू अ हाप्लॉइड प्लांट। तो गाइनोजेनेसिस का मतलब है फीमेल का जो गैमेट सेल है, दैट इज़ मैं चाहूँ तो पूरा ओवरी को ले सकता हूँ, और या तो सिर्फ ओवरी के अंदर ओव्यूल को ले सकता हूँ, मतलब वो अनफर्टिलाइज एग को ले सकता हूँ जो मेल अभी तक फर्टिलाइज नहीं किया गया है। सो दैट अनफर्टिलाइज एग कैन बी यूज टू कल्चर, ओके, टू डेवलप इनटू अ हाप्लॉइड प्लांट। ओके, ये हम लोग कर सकते हैं बाय डिलेड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन प्रोसेस को हम लोग थोड़ा देर रुक सकते हैं, डिले कर सकते हैं। उस समय में हम लोग वो ओव्यूल लेकर हम लोग हाप्लॉइड प्लांट बनाएंगे बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक, दैट इज कॉल्ड गाइनोजेनेसिस। सो गाइनोजेनेसिस मेनली इंक्लूड्स कल्चरिंग ऑफ ओवरी और ओव्यूल, ओके। देन और भी है जिससे हम लोग जिससे हम लोग हाप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो नंबर 4 में देखो बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है। डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन भी है, लेकिन हम लोग थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं। इरेडिएशन इफेक्ट्स, मतलब हम लोग यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग रेज यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग रेज यूज़ करेंगे लाइक अल्ट्रा वायलेट रेज और एक्स रेज टू बी यूज टू इंड्यूस क्रोमोसोमल ब्रेकेज एंड सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज यूज़ करेंगे या तो एक्स रेज यूज़ करेंगे, डायरेक्टली एक पर्टिकुलर रेडिएशन हम लोग इंड्यूस अप्लाई करेंगे प्लांट्स के एंथर और पोलन को, सो दैट वी कैन इंड्यूस क्रोमोसोमल ब्रेकेज, ताकि उसका प्लांट्स का पर्टिकुलर टिश्यू का क्रोमोसोम ब्रेकेज हो सके। और उससे क्रोमोसोम ब्रेकेज होने से क्या हो सकता है हम लोग का हाप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन जनरेट हो सकता है। एक सेट ब्रेक होकर गायब हो गया। गायब कैसा होता है? अगर क्रोमोसोम का ब्रेकेज हो गया तो क्या होगा, क्रोमोसोम का जो फ्रैगमेंट्स है जेनेटिक्स में पढ़े हो, डिलीशंस, डुप्लीकेशंस, क्या होता है वो स्पिंडल फाइबर में अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्रोमोसोम फ्रैगमेंट में कोई सेंट्रोमियर नहीं होगा अगर क्रोमोसोम ब्रेकेज हुआ। सो दे विल नॉट एबल टू माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग योर सेल डिवीजन। दे विल नॉट एबल टू माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इससे क्या होगा, मेरा क्रोमोसोम का क्वांटिटी घट जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल डिक्रीज, और हो सकता है मेरा जो बेनिफिशियल जो क्रोमोसोम्स है जिसका मैं फेनोटाइप चाहता हूँ उस क्रोमोसोम रह जाएगा, एंड वी मे कल्चर देम टू प्रोड्यूस अ हाप्लॉइड प्लांट। नेक्स्ट है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट से भी हम लोग हाप्लॉइड प्लांट जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हाप्लॉइड प्लांट तो हम लोग बना लिया, लेकिन हो सकता है वो प्लांट सर्वाइव ना कर पाए, वो टिश्यू वायबल ना हो, मेटाबॉलिकली एक्टिव ना हो, तो इसके लिए उसका क्रोमोसोम डबलिंग करना होगा, ओके। सो गैमेट्स का क्रोमोसोम डबलिंग कैसे करेंगे? बाय यूजिंग दिस केमिकल्स लाइक क्लोरामफेनिकॉल, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन का नाम सुने हो, मैं शायद बोला हूँ एक बार भी, एक दो बार बोला हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। इसका डिटेल्स थोड़ा है इस चैप्टर के एंड में। बाय यूजिंग क्लोरामफेनिकॉल, कॉल्चिसिन, नाइट्रस ऑक्साइड, मैलिक हाइड्राजीन मैलिक hydrazide can induce chromosome elimination in the somatic cell, which may result in
हाप्लॉइड। ये जो केमिकल्स है तो कॉल्चिसिन स्पेशली, ये जो हम लोग का माइटोसिस में जो स्पिंडल फाइबर होता है सेंट्रोजोम से निकलता है, जिसका एक्चुअली ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूबुल से बनता है, अल्फा ट्यूबुलिन बीटा ट्यूबुलिन से सेल बायोलॉजी में पढ़े हो, उस स्पिंडल फाइबर को डिसरप्ट कर देता है। अगर डिसरप्ट कर देगा तो क्रोमोसोम तो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग योर साइटोकाइनेसिस। जब जब एक सेल दो सेल में पिंच होकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसके लिए क्रोमोसोम वो वहाँ पर फ्रीज नॉट फ्रीज मूवमेंट नहीं कर पाएगा और क्रोमोसोम डबलिंग हो जाता है। सो ये केमिकल जो और है जो जिसका नाम है क्लोरामफेनिकॉल, नाइट्रस ऑक्साइड, मैलिक हाइड्राजाइड, दे कैन ऑल्सो इंड्यूस क्रोमोसोमल एलिमिनेशन इन द सोमैटिक सेल which may result in haploid production. Okay. सो गैमेट्स को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर केमिकल्स की बात किया जा रहा है यहाँ पर हाप्लॉइड प्रोडक्शन तो इस केमिकल से हो जाएगा, लेकिन गैमेट को जो गैमेट्स में जो हाप्लॉइड सेल है उसको क्रोमोसोम डबलिंग करने के लिए भी हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैं लिखा हूँ, अगर पढ़ सकते तो अच्छा है। गैमेट इज़ इंड्यूस्ड फॉर क्रोमोसोमल डबलिंग and the disruption of spindle fiber by the above chemicals so that to maintain that homozygous line. So गैमेट को क्या किया जा रहा है, गैमेट को हम लोग क्रोमोसोम डबलिंग के लिए इंड्यूस कर रहे हैं, उसका स्पिंडल फाइबर को डिसरप्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग सेल डिविजन, सो दैट इसका जो क्रोमोसोम जो हाप्लॉइड था वो अब डिप्लॉइड हो गया, लेकिन सिमिलर क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। वो पेरेंट का जो जेनेटिक कंटेंट था उसी मदर प्लांट का ही जेनेटिक कंटेंट डबल हो चुका है। that can be expressed okay in the progeny and we can maintain that homozygous lines. अब यहाँ पर इन विट्रो ट्रीटमेंट और इन विट्रो टेक्निक्स के बारे में बताया जा रहा है। सो इन विट्रो टेक्निक्स फॉर हाप्लॉइड प्रोडक्शन, दो टेक्निक्स है वही सेम जो यहाँ पर इन विवो में दिखा हूँ, यहाँ पर इन विट्रो में वही कर किया जाएगा, लेकिन टेक्निक थोड़ा अलग होगा क्योंकि ये लैब के अंडर होगा, एसेप्टिकली होगा। So success rate is more compared to the in vivo. So एंड्रोजेनेसिस पहले ही बता चुका हूँ। एंड्रोजेनेसिस का मतलब है वी आर प्रोड्यूसिंग द हाप्लॉइड प्लांट थ्रू एंथर और पॉलेन कल्चर, ओके, दैट आर कॉल्ड एज एंड्रोजेनिक हाप्लॉइड्स। सो जिस मतलब हम लोग जो एंथर और पॉलेन कल्चर कर रहे हैं फ्लावर से, एंथर और पोलिन दैट इज मेल पार्ट ऑफ द प्लांट को लेकर हम लोग कल्चर कर हाप्लॉइड प्लांट बना रहे हैं, वही है एंड्रोजेनेसिस। गाइनोजेनेसिस का मतलब अभी तो बताया थोड़ी देर पहले भी इन व्यू में, ओवरी और ओव्यूल कल्चर दैट रिजल्ट इन जेनरेशन ऑफ और प्रोडक्शन ऑफ हाप्लॉइड्स इज नोन एज गाइनोजेनिक हाप्लॉइड्स। तो जो हम लोग ओवरी और ओव्यूल कल्चर कर रहे हैं दैट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, उस पार्ट को लेकर हम लोग कल्चर कर हम लोग हाप्लॉइड प्लांट बना रहे हैं, उसको क्रोमोसोम डबलिंग कर डिप्लॉइड भी बना रहे हैं, सो दैट इट कैन एबल टू हैव दैट सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट ओनली मदर प्लांट फ्रॉम द मदर प्लांट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है। एंड्रोजेनेसिस को थोड़ा डिटेल में बताएंगे, उसका डायग्राम भी है। सो क्या बता रहा है यहाँ पर, इन एंड्रोजेनेसिस द मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट मतलब मेल का जो गैमेटोफाइट कौन है, पोलेंस है। तो यहाँ पर बता रहा है इमैच्योर पोलेन, ओके, यहाँ पर बता रहा है इमैच्योर पोलेन। सो इन एंड्रोजेनेसिस द मेल गैमेटोफाइट which are the microspore or immature pollen they produce haploid plant। तो जो पोलेन इमैच्योर है थोड़ा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कल्चर करेंगे टू प्रोड्यूस द haploid plant। The basic principle of androgenesis is to stop the development of pollen cell into gamete cell। मेरा जो मेन यहाँ पर प्रिंसिपल जो एंड्रोजेनेसिस का मेन प्रिंसिपल है, अगर पूछता है कोई भी तो उसका मेन मकसद है कि एंड्रोजेनेसिस का क्या है, एंड्रोजेनेसिस का मेन मकसद है टू स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ पोलेन सेल इनटू अ गैमेट, पोलेन सेल ताकि गैमेट सेल में ना कन्वर्ट हो जाए। इसका स्टेप्स है,
पॉलिन का डेवलपमेंट क्लास 12 बायोलॉजी में पढ़े हो, लैब मैनुअल कॉपी में किए भी हो, तो पॉलिन सेल ताकि वो डेवलप होकर जो गैमेट सेल होता है, सेक्स सेल होता है, जिसका कैपेबिलिटी बढ़ जाता है टू फर्टिलाइज द ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो वो पॉलिन सेल से गैमेट सेल करने नहीं दिया जाएगा। उसी इमैच्योर पॉलिन सेल को हम लोग इंड्यूस कर कर हाप्लॉइड प्लांट बनाएंगे। सो द मेन प्रिंसिपल इज टू स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन सेल इनटू गैमेट सेल एंड फोर्स इट टू डेवलप इनटू अ हाप्लॉइड प्लांट। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग मैं लिखा भी हूँ, लेकिन शायद तुम लोग को नहीं दिखा जा रहा है। इमैच्योर पॉलिन है ये एक्चुअली। इमैच्योर पॉलिन यहाँ पे क्रॉस दिया गया है, मतलब इमैच्योर पॉलिन को हम लोग मैच्योर पॉलिन नहीं करेंगे, और इस इमैच्योर पॉलिन को हम लोग कल्चर कर कर हम लोग प्लांट, हाफ-लॉयड प्लांट बनाएंगे, जिसका एन सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उसको हम क्रोमोसोम डबलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट, जो स्पिंडल फाइबर को डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, नाउ तो ये तो हुआ कि हम लोग पॉलिन सेल का जो इमैच्योर पॉलिन सेल है उसको हम लोग मैच्योर पॉलिन सेल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जिसका फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी बढ़ जाता है उसको हम स्टॉप करेंगे, और उसी इमैच्योर पॉलिन सेल को हम लोग हैप्लॉइड प्लांट में कन्वर्ट करेंगे बाय सीरीज ऑफ स्टेप्स। नाउ देयर आर टू अप्रोचेस इन एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस का दो प्रोसेस है, दो अप्रोचेस है जिसके तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक है पूरा की पूरा एंथर कल्चर करेंगे, मतलब पूरा एंथर लेकर हम लोग कल्चर करेंगे जिसका अंदर बहुत सारा पॉलिन्स रहता है। और एक है पॉलिन और माइक्रोस्पोर कल्चर, मतलब एंथर को हम लोग ब्रेक कर कर पॉलिन का डेवलपमेंटल स्टेज देखेंगे लैब में माइक्रोस्कोप के अंदर, फिर देखेंगे कि कौन कौन सा इमेच्योर है, फिर उसे लेकर हम लोग एज ए एक्सप्लांट होकर यूज़ करेंगे टू डेवलप इनटू अ व्हाट, हाप्लॉइड प्लांट। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्लान यूज़ किया जाएगा, दोज प्लांट्स विच विल बी यूज फॉर एंड्रोजेनेसिस, those young plants will be grown under optimal conditions of light, temperature, humidity are suitable for androgenesis। चलो ठीक है, देखते हैं पहले एंथर कल्चर। पूरा की पूरा एंथर को हम लोग लेकर यूज़ करेंगे। एंथर तो मेल पार्ट है जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स रहता है। सो द सिलेक्टेड फ्लावर बर्ड्स ऑफ यंग प्लांट्स आर सरफेस स्टेरिलाइज्ड। ओके, फ्लावर बर्ड्स को हम लोग सरफेस स्टेरिलाइज करेंगे, and then the anthers are removed out along with their filaments। ओके, पूरा के पूरा मेल पार्ट को शायद स्टैमेंस कहता है, तो वही स्टैमेन में जो फिलामेंट है और एंथर है उसके हम लोग वेरी प्रिसाइजली कर कर केयरफुली कर कर हम लोग रिमूव करेंगे। ओके, सो फर्स्ट फ्लावर बर्ड्स को हम लोग सरफेस स्टेरिलाइज करेंगे, जैसे हम लोग 2 in 20 लेते हैं। ओके, या तो टीपोल सॉल्यूशन लेता है, मतलब वो माइल्ड डिटर्जेंट लेते हैं ना। ओके, फिर हम लोग वाटर से वॉश करते हैं रिपीटेडली, इस तरह से हम लोग करेंगे। फिर थोड़ा एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं हम लोग डाइल्यूटेड फॉर्म में, एंड देन द एंथर्स आर रिमूव अलोंग विद देयर फिलामेंट्स, एंड देन द एंथर्स आर एक्साइज्ड। एक्साइज मतलब काटेंगे, फिलामेंट्स से अलग कर देंगे अंडर एसेप्टिक कंडीशन, and crush in 1% एसिटोकार्बिन टू टेस्ट द स्टेज ऑफ पॉलिन डेवलपमेंट। यहाँ पर एक एंथर तो हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग बहुत सारा एंथर लेंगे चेक करने के लिए कि एंथर के अंदर जो पॉलिन्स है उस पॉलिन्स में वाकई हम लोग का इमेच्योर पॉलिन है कि नहीं है, या सब के सब मैच्योर हो चुके हैं। तो क्या करेंगे हम लोग एक तो एंथर लेंगे, उसको एक्सरसाइज करेंगे, मतलब उसको हम लोग काटेंगे, फिलामेंट से अलग करेंगे और उसको क्रश करेंगे। क्रश मतलब उसको प्रेस करके उसका अंदर का जो पॉलिन है वो निकालेंगे, और उसे हम स्टेन करेंगे 1% एसिटोकार्बिन सॉल्यूशन से। ये वही एसिटोकार्बिन है जिससे हम लोग ग्रासहोपर टेस्टिस का सेल को भी किए थे। नाउ इट इज़ सेइंग दैट इफ़ दे आर एट करेक्ट स्टेज, अगर दिखा गया कि ये पॉलिन अच्छे इमेच्योर पॉलिन ही है एक्चुअली, सो क्या करेंगे, बाद बाकी जो एंथर है
anthers are gently separated from the filament and the whole anther intact मतलब whole anther पूरा की पूरा anther को हम लोग क्या करेंगे, they are inoculated on a nutrient medium. ओके सो अगर देखा गया कि अच्छे तरीके से मैक्सिमम इमेच्योर पॉलिनेंसी है तो ईच एंथर को हम लोग एज अ एक्सप्लांट यूज़ करेंगे, फिलामेंट को ऑब्वियसली उसको बाद दे देंगे एंड द इंटैक्ट एंथर्स आर इनोक्यूलेटेड मतलब न्यूट्रन मीडियम के अंदर हम लोग उसे रखेंगे प्रेस कर थोड़ा उसका अंदर चला जाए कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन बाहर चला जाए. मैं तो दिखाया था एक दो बार, रुको. तो ये अगर न्यूट्रन मीडियम है तुम्हारा एंथर क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं. ओके तो थोड़ा अंदर चला जाएगा ये न्यूट्रन मीडियम के अंदर ताकि वो न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकें, राइट. सो इन दिस वे एंड देन इंज्योर्ड एंथर्स, जो एंथर इंज्योर्ड हो चुका है मतलब वेरी केयरफुली कट करना होगा एक्चुअली. जो एंथर इंज्योर्ड हो चुका है दे शुड नॉट बी यूज इन कल्चर. इंज्योर्ड एंथर को कभी भी कल्चर मीडिया में यूज़ नहीं करना चाहिए अगर हम लोग का मकसद है हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करना. वाई? बिकॉज अगर हम लोग इंज्योर्ड एंथर यूज़ करेंगे उसी इंज्योर्ड जगह से कैलस टिश्यू होगा. कैलस टिश्यू जनरली वुंडेड पार्ट से ही होता है अगर ध्यान से देखा जाए तो इसीलिए. और कैलस टिश्यू में क्या रहता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तुम्हारा प्लांट जनरेट कर देगा. हम लोग सोचेंगे कि हम लोग का हैप्लॉइड प्लांट जनरेट हो चुका है लेकिन हम लोग देखेंगे डिप्लॉइड प्लांट हो चुका है. तो इसीलिए हम लोग कैलस फॉर्मेशन को अवॉइड करेंगे. तो इसीलिए इंज्योर्ड एंथर्स को हम लोग नहीं यूज़ करेंगे. हम लोग का मकसद यही है एंथर के अंदर जो सेल है इमेच्योर पॉलिन सेल उससे हम लोग प्लांट बनाएंगे जो कि हैप्लॉइड प्लांट होगा. ओके सो ट्राई टू अवॉइड इंज्यूरिंग ऑफ द एंथर टिश्यूज़. होता भी है इसलिए हम लोग 20-25 एंथर को लेकर कल्चर कर रहे हैं. ओके ताकि कुछ एंथर में तो इंजर हो सकता है. So the anther cultures are maintained in alternating periods of light and darkness at 28 डिग्री सेल्सियस. मतलब कल्चर रूम में हम लोग मीडियम में अंदर डाल चुके हैं, वो एंथर को इनोकुलेट कर चुके हैं. अब हम लोग को उसे कल्चर रूम में रखना होगा. तो ऑल्टरनेटिंग लाइट और डार्क कंडीशन में हम लोग को उसे मेंटेन करना होगा. जनरली तुम्हारा 16 आवर लाइट फेज होता है और 8 आवर डार्क फेज होता है. 16 घंटे के लिए लाइट पीरियड में हम लोग रखेंगे और ऑटोमेटिकली उसे डार्क कंडीशन में रखेंगे. बाद बाकी जो होता है मतलब 8 आवर्स डार्क फेज होता है. तो यहाँ पर वेरिएशन दिया गया है, डिपेंड करता है. एक्चुअली ये क्या होता है, ये एंथर कल्चर का भी बहुत सारा रिसर्च हो चुका है. तो एक एक प्लांट का एक एक तरीके से ग्रो किया गया है. तो डिपेंडिंग ऑन देयर रिसर्च पेपर वी विल यूज़ दैट टाइप ऑफ कल्चर. एक्चुअली वी विल यूज़ दैट टाइप ऑफ लाइट पीरियड फोटो पीरियड at 28 degrees Celsius. Now as the anthers proliferate they produce callus. यही एंथर जब प्रोलिफरेट करेगा, जब ग्रो करेगा, तब जो कैलस प्रोड्यूस करेगा उस कैलस में हैप्लॉइड प्लांट होगा. ये कोई इंज्यूर्ड कैलस नहीं है. ये कैलस हम लोग इमेच्योर पोलिन से बना रहा हूँ. ओके दैट हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल. वुंडेड कैलस से हम लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा जिससे हम लोग का नॉर्मल डिप्लॉइड प्लांट हो जाएगा. ओके जो कि हम लोग का जो होमोजाइगस लाइन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पर एंथर्स को हम लोग प्रोलिफरेट कर वो कैलस बना रहा हूँ और इसी कैलस से हम लोग सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस, जो एक टर्म है सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस, शायद मैं ये थोड़ा बता चुका हूँ. सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस अगर नहीं तो बाद में बताऊँगा. सोमैटिक सेल से हम लोग एम्ब्रायो बना सकते हैं
and then produce a haploid plant. ओके, तो सिंपल थिंग, अगर इसका डायग्राम दिखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। सिंपल डायग्राम है। लेफ्ट साइड फिगर को देखो, राइट साइड का नहीं, राइट साइड का पॉलिन कल्चर है। तो ये फ्लावर बार्ड लिया, उसको सरफेस स्टेरिलाइज किया, एंथर को लिया, एंथर का स्टेज दिखा, कैसे दिखा, एंथर को क्रॉस कर कर उसको पॉलिन्स को स्टेन करेंगे एसिटोकार्बिन सॉल्यूशन से, 1% एसिटोकार्बिन सॉल्यूशन से। फिर देखेंगे, चेक करेंगे इमेच्योर पॉलिन है कि नहीं, क्योंकि हम लोग का मकसद यही है, इमेच्योर पॉलिन को से ही हम लोग प्लांट बनाएंगे, हाफ प्लांट बनाएंगे। यहाँ पर प्लेटिंग ऑफ एंथर लिखा गया है, मतलब जो पेट्री डिश होता है, जो माइक्रोबायोलॉजी में देखे हो, उसी पेट्री डिश में तुम्हारा कल्चर मीडियम को दिया जाता है। जैसे बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है, वैसे ही उसी पेट्री डिश के अंदर हम लोग एंथर को पुट करेंगे और उसको ग्रो करेंगे। वही एंथर प्रोलिफेट करेगा बाद में कल्चर पीरियड में, 16 आवर लाइट फेज, 8 आवर डार्क फेज। फिर प्रोलिफरेटिंग एंथर्स कैलस टिश्यू में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कैलस टिश्यू कन्वर्ट होने के, ये कैलस लेकिन इंज्यूर्ड कैलस नहीं है, वुंडेड कैलस नहीं है, वुंडेड टिश्यू से नहीं बना है। ये कैलस हम लोग फोर्स किए हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइटो हार्मोन्स। और उसी कैलस से हम लोग एम्ब्रायो डेवलपमेंट करेंगे, जिसका नाम है सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस ये साथ में किया हूँ, देख लेना पहले पिछले वाला वीडियोज़ में। और उसी एम्ब्रायो डेवलपमेंट करने के बाद या तो हम लोग एम्ब्रायो को आर्टिफिशियल सीड्स में यूज़ कर सकते हैं, ओके, कैल्शियम एल्जीनेट, सोडियम एल्जीनेट, कैल्शियम क्लोराइड जो पॉलीमर होता है, उसके थ्रू से हम लोग एम्ब्रायो को इनकैप्सुलेटेड कर सकते हैं और आर्टिफिशियल सीड्स यूज़ कर सकते हैं। या तो उस एम्ब्रायो को फर्दर ग्रो कर कर हम लोग हाफलॉइड प्लांट बनाएंगे, ठीक है। और ये हाफलॉइड प्लांटलेट, सॉरी, ये हाफलॉइड जो प्लांटलेट है, इसका तो अंदर हाफलॉइड का नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो हो सकता है इसका वायबिलिटी ना अच्छे हो पाए, वायबिलिटी नहीं होगा, स्टेरल हो जाएगा। तो इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए, ताकि हम लोग का ये होमोजाइगस लाइन मेंटेन हो सके, फर्दर जनरेशन के लिए भी अच्छा हो सके, इसलिए इस हाफलॉइड प्लांटलेट को फर्दर हम लोग क्रोमोसोम डबलिंग करेंगे। कैसे करेंगे, इसे हम लोग एक्सपोज करेंगे कॉल्चिसिन से। कॉल्चिसिन नॉर्मली स्पिंडल फाइबर डिसरप्ट कर देता है। स्पिंडल फाइबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, याद करो। ये अगर सेल होता है, सेल के अंदर जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में एक फेज़ होता है जिसका नाम है एनाफेज। एनाफेज, सॉरी, मेटाफेज, सोचो मेटाफेज, रुको एक मिनट, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स एक अलाइन कर कर इक्वेटर रीजन में रहता है, ओके। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये मैं हाथ से कर रहा हूँ, इसलिए इतना एक्यूरेटली नहीं हो रहा है। और ये तुम्हारा स्पिंडल फाइबर है जो सेंट्रोजोम से होता है। ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, जब तुम्हारा एनाफेज होगा, एनाफेज में क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो जाता है और क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है स्पिंडल फाइबर्स से जॉइंट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर, ओके। जब एनाफेज होता है तो ये पिंच हो जाता है और स्पिंडल फाइबर दो दो जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग द डॉटर सेल्स। तो ये जो कॉल्चिसिन है इस स्पिंडल फाइबर को डिसरप्ट कर देता है, so that the chromosomes cannot migrate to the opposite poles of the cell, so that no two daughter cells will be created। तो क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम जो डबल रेप्लिकेट हो चुका है ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ योर सेल साइकिल। एस फेज में तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये तुम लोग पहले ही थर्ड सेम में किए हो। तो ये क्रोमोसोम का जो डबलिंग हुआ,
इससे क्या हुआ, हाप्लॉइड जो क्रोमोसोम नंबर हुआ वो डिप्लॉइड हो गया, लेकिन नया चीज़ क्या हुआ, मेरा होमोजाइगस लाइन मेंटेन हो जाएगा, इसका जो वायबिलिटी है वो ठीक हो जाएगा। ओके, so in this way we can produce a haploid plant, and from that we can produce a homozygous diploid plant. नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारा पॉलिन कल्चर, जो कि अनदर टाइप है। ओके, पोलन कल्चर मतलब माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर, जो कि तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट बनाता है यहाँ पर, दैट इज़ द पॉलिन ग्रेन्स। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पॉलिन ग्रेन्स को ही कल्चर करेंगे। सो इट इज़ सेइंग दैट हाप्लॉइड प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इमैच्योर पोलिन और माइक्रोस्पोर्स। हाप्लॉइड प्लांट हम लोग पॉलिन से, इमैच्योर पॉलिन से कर सकेंगे और माइक्रोस्पोर्स से कर सकेंगे। ओके, विच आर द इमैच्योर pollens? Male gametophytic cells. The pollens can be extracted by pressing and squeezing the anthers with the help of glass rod. तो हम लोग क्या करेंगे, एंथर को पहले लेंगे, एंथर लेने के बाद उस एंथर को क्रश करेंगे, so that the pollens can be comes out from the anther with the help of glass rod. ओके, एक लंबा सा कांच का ट्यूब होता है जिसके थ्रू से प्रेस करेंगे अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द साइड्स ऑफ द बीकर। बीकर रहेगा, बीकर के अंदर एंथर रहेगा, और फिर हम लोग बीकर को, एंथर को बीकर के जो वॉल्स है वहाँ पर ले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड और प्रेस करेंगे ताकि एंथर से पॉलिन्स निकल जाए। द पॉलिन सस्पेंशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव अवे द एंथर टिश्यू डेब्रिस। फिर हम लोग फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे ताकि सिर्फ पॉलिन का जो सस्पेंशन है, मतलब पॉलिन का जो लिक्विड, ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिन कल्चर लिक्विड कल्चर होता है नॉर्मली। तो पॉलिन का जो सस्पेंशन है उससे हम लोग पॉलिन्स को अलग कर हम लोग एंथर टिश्यू से अलग कर देंगे। वायबल एंड लार्ज pollens आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो पॉलेंस वायबल है मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव है और जो लार्ज है, स्मॉलर पोलेंस डू नॉट रीजनरेट। जो छोटा पोलन होता है उससे तुम्हारा रीजनरेशन नहीं होता। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय फिल्ट्रेशन, उसे हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। मैक्सिमम वो लार्ज पोलेंस को ही ऑप्टेन करेंगे। दे आर वॉश्ड and collected, and these pollens are cultured on a solid or liquid medium। यही pollen को हम लोग या तो solid medium से, सेमी सॉलिड एगर मीडियम से, या तो लिक्विड मीडियम से हम लोग कल्चर करेंगे। ओके, सो सिंपल थिंग, एंथर कल्चर की जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर पॉलिन्स को हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए एंथर्स का जो डेब्रिस है वो रिमूव करने के बाद जो पॉलिन सस्पेंशन है उसे हम जो लार्ज पॉलेंस है, जो वायबल है, उसे हम लोग लेंगे और उसे हम लोग वॉश करेंगे, फिर कलर करेंगे, फिर वी विल कल्चर देम ऑन अ सॉलिड और लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम कल्चर का नाम है सस्पेंशन कल्चर। ओके, नाउ द कैलस एंड embryo is formed is transferred into a suitable medium to finally produce a haploid plant। ओके, और उसे फिर से हम लोग डिप्लॉयड प्लांट भी कर सकेंगे बाय कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर कॉल्चिसिन का क्या है, कॉल्चिसिन वो थोड़ा मैं लिखा हूँ यहाँ पर। कॉल्चिसिन इज़ अ टॉक्सिक केमिकल्स दैट इज़ ऑफन यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है। पॉलीप्लॉइडी, प्लॉइडी मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। पॉलीप्लॉइडी मीन्स हैविंग मोर देन वन सेट्स ऑफ क्रोमोज, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये हाप्लॉइड है, उसे हम डिप्लॉइड कर रहे हैं और कुछ नहीं। कॉल्चिसिन क्या करता है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इट प्रिवेंट्स द माइक्रोट्यूबुल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिविजन, दस क्रोमोसोम्स डू नॉट पुल अपार्ट लाइक दे नॉर्मली डू। चलो देखते हैं पॉलिन कल्चर कैसे किया जाता है।
देखते हैं। ये देखो राइट साइड में, अब देखो फ्लावर बर्ड है, उससे एंथर लिया, सेम जैसा एंथर कल्चर। फिर ग्लास रॉड के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, एंथर को क्रश करेंगे टू एक्सट्रैक्ट द पोलेंस। पोलेंस को वॉश किया, फिल्टर किया। ओके, वायबल और मैच्योर वायबल पोलेंस को ही लेंगे हम लोग। वायबल लार्ज बट इमेच्योर रहेगा, इस तरह का पोलेंस को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और पोलेंस को हम लोग या तो सॉलिड मीडियम से या तो लिक्विड मीडियम से कल्चर करेंगे। लिक्विड मीडियम कल्चर करने का नाम है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर, सस्पेंशन कल्चर। एक्चुअली लिक्विड मीडियम में क्या होता है, उस कल्चर करने के बाद वो लोग कैलस फॉर्मेशन हो जाता है, और जो थोड़ा लार्ज हो जाता है उसे फर्दर ब्रेक कर फिर से सस्पेंशन कल्चर किया जाता है। एक टाइम के बाद उस कैलस को हम लोग सेमी सॉलिड मीडियम में रख कर उसे इम्ब्रा बनाएंगे, या तो कैलस से हम लोग प्लांट बनाएंगे। So you can see the polynembry formation has been done, and इस polynembry further develops into a haploid plant। वही सेम प्रोसेस अब haploid plant को हम लोग होमोजाइगस प्लांट में कन्वर्ट करेंगे। वही सेम फीचर जो मदर प्लांट में था, by inducing them with colchicine treatment। colchicine स्पिंडल फाइबर को डिजर्व कर देता है सो दैट द क्रोमोसोम्स do not migrate to the daughter cells। वो उस सेल में ही इंटैक्ट रह जाता है, एंड thus we can produce a homozygous diploid plant। ओके, सो ये तो हम लोग बताएं, इसके बारे में बताए हैं। अब नॉर्मली जो थिंग है, मैनी वर्कर्स जो है दे प्रेफर पॉलिन कल्चर, ठीक है। एंथर कल्चर अगर कंपेयर किया जाए, एंथर कल्चर जो एंड्रोजेनेसिस है, एंड्रोजेनेसिस का जो दो पार्ट है, एक है एंथर कल्चर, एक है पॉलिन कल्चर। इन विट्रो में वर्कर्स ज़्यादातर पॉलिन कल्चर को ही प्रेफर करता है। वाई, पॉलिन कल्चर का जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा कम है कंपेयर टू द एंथर कल्चर। स्टिल वर्कर्स जो लोग काम करता है इस इन विट्रो टेक्निक्स में, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में, वो लोग प्रेफर करता है पॉलिन कल्चर को। क्यों? क्योंकि पॉलिन कल्चर में थोड़ा बहुत एडवांटेज भी है। फर्स्ट एडवांटेज, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ एंथर वॉल एंड एसोसिएटेड टिश्यूज कैन बी अवॉइडेड। ये बात तो सही है, क्योंकि एंथर कल्चर में तुम्हारा सिर्फ पॉलिन का कल्चर नहीं हो रहा है, एंथर का जो टिश्यूज़ है उसका भी कल्चर हो रहा है। तो ये चांस हो सकता है कि उसी एंथर टिश्यू से हम लोग का डिप्लॉयड प्लांट प्रोडक्शन हो जाए। हम लोग का मकसद है हाप्लॉयड प्लांट प्रोडक्शन करना, होमोजाइगस लाइन मेंटेन करना, राइट। Next is androgenesis starting from a single cell can be better regulated। अगर हम लोग एक सेल से हम लोग कल्चर करते हैं, जैसे पॉलिन सेल से, तो हम लोग का मोर होमोजाइगस, जो होमोजाइगसिटी है वो मेंटेन हो जाएगा। आइसोलेटेड माइक्रोस्पोर्स दैट इज पोलेंस आर आइडियल फॉर वेरियस जेनेटिक मैनिपुलेशन लाइक ट्रांसफॉर्मेशन एंड म्यूटाजेनेसिस। जो माइक्रोस्पोर ले रहे हैं हम लोग, इमेच्योर पोलिन ले रहे हैं, वो इमेच्योर पोलिन्स जो है वो वेरियस जेनेटिक, उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे पोलिन्स को हम लोग म्यूटाजेनेसिस कर सकते हैं। म्यूटाजेनेसिस का मतलब म्यूटाजेनेसिस, म्यूटा का मतलब म्यूटेशन करना, चेंज इन द बेस पेयर ऑफ द डीएनए। जेनेसिस का मतलब क्रिएट करना, हम लोग यहाँ पर म्यूटेशन करेंगे, ठीक है। तो म्यूटाजेनेसिस में हम लोग म्यूटेशन करेंगे, किस पे करेंगे, यहाँ पर पॉलिन्स में करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि मे बी म्यूटेशन करने के बाद कोई डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए उसमें, ओके, जो हम लोग का इंटरेस्ट है। ये जैसे एक साइंस फिक्शन फिल्म है, तुम लोग शायद हॉलीवुड देखे हो, डेडपूल देखे हो शायद। डेडपूल में क्या दिखाया, म्यूटाजेनेसिस करने से क्या किया, उस आदमी को पेन नहीं होता, हाथ कट गया, पेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस तरह का थिंग है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग म्यूटेशन करेंगे। म्यूटेशन करेंगे कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एक्स रेज और यूवी रेज, और विद द हेल्प ऑफ योर सर्टेन प्राइमर्स, ओके, जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू से करेंगे। ये तुम बाद में देखोगे जब हम लोग आरडीटी के बारे में पढ़ेंगे।
So with the help of mutagenesis, we can modify the genetic content inside the microspore more easily, and we can able to modify them. Okay. एक और प्रोसेस है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एक जेनेटिक डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट रहता है, फिर डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जो कोई बेनिफिशियल फंक्शन के लिए इन्वॉल्व है, प्लांट के लिए हेल्पफुल है, हम लोग का कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, उस जीन को हम लोग कोशिश करेंगे उस पॉलिन्स में अंदर जेनेटिक मटेरियल में अंदर घुसाना, और दैट प्रोसेस कैन बी डन बाय वेरियस टेक्निक्स लाइक योर बायोलिस्टिक मेथड जिसे हम जीन गान कहते हैं, देन माइक्रोपीपेट टेक्निक। ओके, बहुत सारा टेक्निक्स है, और उस जेनेटिक मटेरियल को अंदर एक्सप्रेस कराएंगे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो मेरा मकसद है उस पॉलिन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कराएंगे। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंथर में क्या किया जा सकता है, बट इट इज़ नॉट सो मच रेगुलेटेड। किस पॉलिन में होगा नहीं मालूम हम लोग को। द यील्ड ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स इज रिलेटिवली हायर। सक्सेस रेट कम है, लेकिन जो माइक्रोस्पोर से हम लोग का प्लांट हो जाएगा वो कम्प्लीटली कन्फर्म वो ग्रो करेगा ही करेगा, स्टेराइल नहीं होगा। सो द यील्ड ऑफ हैप्लॉइड प्लांट इज रिलेटिवली हायर। अब जो मेन थिंग है जो प्राय क्वेश्चन में पूछा जाता है, लगभग पूछा जाता है, वो है डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स। ये डेवलपमेंट का जो स्टेज है वो पूछा जाता है, तो उसके लिए दो चीज़ पढ़ना पड़ेगा, और जो मैं दिखा रहा हूँ, वेट फॉर ए मिनट। ओके, पॉलिन जब डेवलप होता है तो दो तरह का सेल होता है जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल्स और जेनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल क्या होता है वो मैं थोड़ा यहाँ पे लिखा हूँ, पहले देख लो ये, फिर तुम लोग समझ में आ जाएगा। वेजिटेटिव सेल इज़ अ नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, whereas generative cell is reproductive। वेजिटेटिव सेल रिप्रोडक्टिव नहीं होता, नॉन रिप्रोडक्टिव होता है, लेकिन जेनरेटिव सेल रिप्रोडक्टिव होता है, वो दूसरा सेल को अराइज करता है, उससे अराइज हो सकता है। वेजिटेटिव सेल इज लार्जर एज कंपेयर टू द जेनरेटिव सेल। नॉर्मल कंडीशन में वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है कंपेयर टू द जेनेटिव सेल। जब एंथर के अंदर जो पॉलिन है वो जब बढ़ता है, ग्रो करता है, तो वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल में कन्वर्ट होता है। वेजिटेटिव सेल में बताया, वेजिटेटिव सेल नॉन रिप्रोडक्टिव है, उससे कोई और दूसरा सेल अराइज नहीं होगा, और वो लार्जर होता है generally as compared to generative cell। Vegetative cells forms the pollen tube to deliver the male gametes to the embryo sac। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल फर्दर उसका जो डिविशंस होता है जब प्लांट डेवलपमेंट होगा, उससे तुम्हारा पॉलिन ट्यूब्स बनेगा। फ्लावर के अंदर जो पॉलिन ट्यूब है, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, वो डिलीवर करता है ताकि तुम्हारा पॉलिन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स एम्ब्रायो सैक के अंदर आ सके। एक पाथवे है, ओके, जिसे हम स्टीली कहते हैं, STYLE, STYLE। जेनेटिव सेल्स फ्रॉम स्पर्म सेल और मेल गैमेट्स। जेनेटिव सेल से ही तुम्हारा मेल गैमेट्स बनता है, मोर पॉलिन सेल्स बन सकता है। तो ये तो हुआ वेजिटेटिव सेल्स और जेनेटिव सेल्स के बारे में। अब देखते हैं किस तरह का डेवलपमेंट होता है। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड। जो पॉलिन को हम लोग कल्चर कर रहे हैं, वो पॉलिन फर्दर डिवीजन होगा कल्चर के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर, और वो कुछ डिफरेंट वे में डिवाइड करेगा। उसका जो कॉम्बिनेशन है वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल उससे जो बनता है वो थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बनता है।
So it is saying that the cultured microspores may follow 4 distinct pathway during the initial stages of in vitro एंड्रोजेनेसिस। ये जो तुम्हारा माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर 4 तरह का पाथवे फॉलो कर सकता है इन विट्रो में within the lab during the initial stage of in vitro androgenesis. So let us see the pathways. पहला पाथवे, पहला पाथवे में क्या होता है, मैं डायग्राम देख देख कर दिखा रहा हूँ। पहला पाथवे जो होता है द यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर, दैट इज द सिंगल न्यूक्लियस कंटेनिंग माइक्रोस्पोर मतलब पोलेन अंडरगो 2 equal divisions to form 2 daughter cells of equal size। इन विट्रो कल्चर करने के बाद जो माइक्रोस्पोर का फर्दर डिवीजन होता है, ये माइक्रोस्पोर जो तुम्हारा पॉलिन ग्रेन्स है, वायबल पॉलिन से वो फर्दर डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर डिवीजन इक्वली में इक्वल डिवीजन होगा टू प्रोड्यूस 2 daughter cells of equal size as it is observed in Datura inoxia। Datura inoxia बंगाली में इसे धूतुरा कहते हैं, धूतरा हिंदी में मालूम नहीं है। तो डैटूरा इनॉक्सिया में दिखा गया है जब इसका हाफ प्लांट प्रोडक्शन किया जाता है तो दिखा गया है कि वो पॉलिन्स इक्वल डिवीजन कर रहा है। मतलब तुम लोग को हम लोग को मालूम नहीं होगा, समझ में अगर दिक्कत होगा कि कौन सा जेनेरेटिव सेल है कौन सा वेजिटेटिव सेल है। लेट अस सी द पाथवे, नेक्स्ट पेज में है। ओके ये एंथर है, ये माइक्रोस्पोर है, तुम्हारा फर्स्ट माइटोसिस हो रहा है क्योंकि हम लोग कल्चर मीडिया में डाले हैं उस माइक्रोस्पोर को, उस पॉलेंस को। ये तुम्हारा पॉलेन है। तो देखो फर्स्ट पाथवे में इक्वल सेल हुआ है, कौन सा वेजिटेटिव सेल है कौन सा जेनेरेटिव सेल है यह मालूम नहीं हो रहा है, इक्वल सेल डिवीजन हुआ है। सो द कल्चर माइक्रोस्पोर मेन तुम्हारा जो यूनिन्यूक्लिएट न्यूक्लियस था, ये यूनिन्यूक्लिएट न्यूक्लियस जो था वो इक्वल डिवीजन होकर तुम्हारा 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हुआ है। फर्दर जब सेकेंड माइटोसिस होगा, सेकेंड माइटोसिस में इक्वली कर 4 सेल्स, 2 से तो 4 होता है क्योंकि हम लोग का सेल डिवीजन 2n प्रोसेस से होता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ जनरेशंस, राइट। तो ये पहला पाथवे है, इक्वली कर डिवाइड कर रहा है। ओके नो प्रॉब्लम। सेकेंड में क्या बता रहा है, लेट अस सी। सेकेंड में बता रहा है पाथवे 2 में इन सर्टेन प्लांट्स माइक्रोस्पोर डिवाइड अनइक्वली to give rise to a bigger vegetative cell and a smaller generative cell। कुछ प्लांट्स में दिखा गया है कि माइक्रोस्पोर अनइक्वली डिवाइड हो रहा है, जो कि नॉर्मली होता है इन विवो में भी, टू गिव राइज टू अ बिगर वेजिटेटिव सेल एंड अ स्मॉलर जेनरेटिव सेल। ये बात याद कर लेना कि जेनेटिव सेल से तुम्हारा मेल गैमेट्स हो सकता है, फिर से जनरेट कर सकता है, और वेजिटेटिव सेल सिर्फ पॉलिन ट्यूब को सिर्फ वो ट्यूब को बनाता है जिसका नाम है स्टीली। उस स्टीली के ज़रिए तुम्हारा मेल का जो गैमेट्स है वो इंटर कर फीमेल का गैमेट्स को फर्टिलाइज करता है इन फ्लावर। तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रहा है वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्जर होगा जेनेटिव सेल से कंपेयर किया जाए तो। इट इज़ द वेजिटेटिव सेल दैट अंडरगो फर्दर डिविजन्स टू फॉर्म कैलस। यही वेजिटेटिव सेल से क्या किया जाएगा, फर्दर डिविजन्स किया जाएगा, मोर डिविजन्स विल बी डन टू फॉर्म कैलस, कैलस फॉर्म करने के लिए। और दिस वेजिटेटिव सेल कैन बी यूज्ड टू फॉर्म इम्ब्रायो। इसी वेजिटेटिव सेल से हम लोग इम्ब्रायो भी बनाएंगे। ओके बाय चेंजिंग द हार्मोनल द फाइटोहार्मोन concentrations in the tissue culture medium। The generative cell on the other hand will degenerate after 1 or 2 divisions। यहाँ पर क्या दिखा गया है सेकेंड पाथवे में, जो जेनरेटिव सेल है वो 2-3 डिवीजन करने के बाद डीजेनरेट हो जाता है, उसमें कोई मतलब
वो इनएक्टिव हो जाता है, वो और फर्दर डिवीजन नहीं करता, डीजेनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस को दिया गया है वेजिटेटिव सेल को। सेकेंड पाथवे में जो दिखा गया है, कुछ प्लांट्स है जिसका इस तरह का एंड्रोजेनेसिस करने के बाद इस तरह का पाथवे देखने को मिला कि इट डिवाइड्स अनइक्वली एंड फॉर्म वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल. The vegetative cell further divides and form your callus tissue. Okay, and while the generative cell does not divide, it divides 1 to 2 divisions and further it degenerates, inactive हो जाता है. ये वो प्लांट है जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका ये सेकेंड पाथवे फॉलो किए थे ड्यूरिंग देयर माइक्रोस्पोर कल्चर, लाइक निकोशियाना टैबाकम जो कि तुम्हारा टोबैको प्लांट है, कैप्सिकम एनम जो एक मिर्ची तरह का प्लांट है जो हम लोग खाते हैं प्राय, कैप्सिकम. लिखते हैं इसका पाथवे का डायग्राम. चलो ये वही है एंथर माइक्रोस्पोर, इसे हम कल्चर कर रहे हैं. फर्स्ट माइटोसिस देखो, सेकंड जो लिखा है देख रहे हो, अनइक्वल डिवीजन हुआ है. ये तुम्हारा वेजिटेटिव सेल है, ये वाला तुम्हारा वेजिटेटिव सेल है, वाइल ये वाला तुम्हारा जेनरेटिव सेल है. तो जेनरेटिव सेल तो फर्दर डिवीजन एक दो डिवीजन करने के बाद मतलब उसका डीजनरेशन हो जाता है, ये देख रहे हो. सेकंड माइटोसिस में तुम्हारा जेनेटिव सेल डिवाइड हो गया है, देखो ये डिवाइड हो चुका है, लेकिन जेनेटिव सेल ज़्यादा डिवीजन नहीं कर पा रहा है, वो डीजनरेट हो जाएगा. और उससे क्या होगा, यही वेजिटेटिव सेल से तुम्हारा कैलस होगा, इस वेजिटेटिव सेल से ही तुम्हारा फर्दर कैलस डेवलपमेंट होगा. ओके, by changing by a little bit modification of the cultures in the culture medium. Okay, let us see the third stage, the third pathway. थर्ड पाथवे में क्या दिखाया गया है, इन दिस केस द माइक्रोस्पोर अगेन अंडरगो अनइक्वल डिवीजन, द एम्ब्रायोज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द जेनरेटिव सेल. यहाँ पर भी तुम्हारा माइक्रोस्पोर अनइक्वल डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा होता है. एम्ब्रायो जनरली यहाँ पर जेनरेटिव सेल से बन रहा है, while the vegetative cell does not divide at all or undergoes limited number of divisions. सिंपली यहाँ पर जो पाथवे में टू में था, वेजिटेटिव सेल कैलस फॉर्मेशन हो रहा था, जेनेटिव सेल एक दो डिवीजन करने के बाद डीजेनरेट हो जा रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा है. यहाँ पर माइक्रोस्पोर अनइक्वल डिवीजन ही करता है, लेकिन यहाँ पर जो जेनेटिव सेल वो जो बनाया, उस जेनेटिव सेल से एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब किया जा रहा है बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक ऑब्वियसली. लेकिन जो वेजिटेटिव सेल है वो फार्दर डिवीजन नहीं कर रहा है, एंड इट अंडरगोज, मतलब फार्दर डिवीजन मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन कर रहा है, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ रहा है, उतना तक ही रह रहा है. एग्जाम्पल जो दिखा गया है, पॉलिन कल्चर ऑफ हाइग्रोस्काइमस नाइगर. हाइग्रोस्काइमस नाइगर प्लांट का जो पॉलिन कल्चर किया गया था, उसमें इस तरह का पाथवे दिखा गया था जब उसका पॉलिन कल्चर किया गया था. लेट अस सी, ये इसका थर्ड फिगर होगा. तो ये जो है तुम्हारा थर्ड वाला जो बिगर सेल है, यहाँ पर तुम्हारा वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल ही हो रहा है. वेजिटेटिव सेल लार्जर है, जेनेटिव सेल स्मॉलर है, लेकिन 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 वेजिटेटिव सेल ज़्यादा डिवीजन नहीं कर पा रहा है, वो लिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन किया है, देख रहे हो यहाँ पर डिवीजन नहीं किया वेजिटेटिव सेल. लेकिन जेनरेटिव सेल काफ़ी अच्छे से डिवीजन कर रहा है, देखो यहाँ पर 2 डिवीजन किया गया है, फिर उससे 4 होगा, उससे 6 होगा, उससे 8 होगा, एंड फर्दर इट विल डेवलप इनटू अ एम्ब्रायो. इससे यहाँ पर एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा, वाइल वेजिटेटिव सेल कुछ ही डिवीजन करने के बाद स्टॉप हो जाएगा, डीजेनरेट नहीं होगा लेकिन स्टॉप कर देगा, लिमिटेड नंबर ऑफ डिवीजन होता है. ओके, द लास्ट वन इज़ द पाथवे 4. पाथवे 4 में क्या बता रहा है, देखो द माइक्रोस्पोर डिवाइड अनइक्वली, यहाँ पर भी पाथवे 4 में भी अनइक्वल डिवाइड होगा, एज वी हैव सीन इन पाथवे 2 and 3. ओके, बुक्स में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 1 to 2 लिखा है, 2 और 3 होगा, क्योंकि पाथवे 1 में तो इक्वल डिवीजन हुआ है इसलिए. सो 2 और 3 में जो दिखाया गया है वही अनइक्वल डिवीजन यहाँ पर भी होगा. हाउएवर इन दिस केस बोथ द वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल
can further divide and contribute to the development of haploid plant. तो माइक्रोस्पोर यहाँ पर अनइक्वली डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल होता है, वो वेजिटेटिव सेल और जेनेटिव सेल कैन फर्दर डिवाइड, दोनों सेल ही अच्छे तरीके से डिवीजन हो रहा है एंड डेवलपमेंट इनटू अ हाप्लॉइड प्लांट, जैसे डाटूरा मिटेल, एट्रोपा बेलाडोना, इस तरीके का प्लांट दिखा गया। इसका पॉलिन कल्चर जब किया गया था, एट्रोपा बेलाडोना, डाटूरा मिटेल, they can give rise to haploid plant because both the vegetative cells and the generative cells are dividing. Okay, they are dividing continuously and develop into haploid plant. So pathway 4 बहुत अच्छा है, मतलब जो प्लांट्स पाथवे 4 को फॉलो कर रहा है जब उसका पॉलिन कल्चर किया जा रहा है, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज इससे हम लोग का प्लांट का प्रोलिफरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। सो इसका डायग्राम उतना अच्छा नहीं है अगर देखा गया तो, देखो बड़ा सा वेजिटेटिव सेल और छोटा सा जेनेटिव सेल, लेकिन दोनों सेल ही तुम्हारा डिवीजन कर रहा है अच्छे तरीके से, दैट गिव राइज टू अ हाप्लॉइड प्लांट। ओके, तो ये तुम्हारा मेनली 4 पाथवेज था। इसका 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 क्वेश्चंस आता है जनरली, ठीक है, लार्ज क्वेश्चंस आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है या तो 10 मार्क्स के लिए आता है। ओके, 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो गया, 7 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा 7 मार्क्स देता है, ठीक है। नाउ जो हम लोग बताएंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे, वो है फैक्टर्स विच अफेक्ट एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस का क्या क्या फैक्टर्स है जिससे एंड्रोजेनेसिस अच्छा हो सके या घट सकता है उसका प्रोसेस। सो अ गुड नॉलेज ऑफ वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एंड्रोजेनेसिस will help you to improve the production of androgenic haploid। तो हम लोग का गुड नॉलेज रहना चाहिए एंड्रोजेनेसिस कैसे होता है। ओके, तो उसके लिए जो फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या क्या है देखते हैं। पहला है जीनोटाइप ऑफ द डोनर प्लांट्स। जो जिस प्लांट से हम लोग एंड्रोजेनेसिस करेंगे उसका जो जीनोटाइप है, उसका जो जीन कंटेंट है वो क्या है। So the success of anther or pollen culture largely depends on the genotype of the donor plant. So it is therefore important to select only the high responsive genotypes। जो जीनोटाइप्स, जो जीन कंटेंट है, जो पेरेंट प्लांट से हम लोग हार्डवेयर कल्चर करेंगे, एंड्रोजेनेसिस करेंगे, उसका जो जीन हाईली रेस्पॉन्सिव रहना चाहिए। सम वर्कर चूज अ ब्रीडिंग अप्रोच to improvement of this genotype before they are used in androgenesis। तो एंड्रोजेनेसिस करने से पहले, हाप्लॉइड प्लांट जनरेट करने से पहले हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे या तो सेल्फ ब्रीडिंग करेंगे, ताकि जो पेरेंट प्लांट होगा उस पेरेंट प्लांट में डिज़ायरेबल जेनोटाइप रह सकता है, उसी जेनोटाइप से हम लोग हाप्लॉइड प्लांट बनाएंगे। So it's important to carefully choose what type of genotype you are using actually, right। सेकेंड है तुम्हारा, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। सेकेंड है जो तुम्हारा वो है स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलिन। पॉलिन का किस स्टेज में है। इट इज सेइंग दैट माइक्रोस्पोर रेंजिंग फ्रॉम टेट्राड टू बाइन्यूक्लिएट स्टेजेस आर मोर रिस्पॉन्सिव। तो इसका मतलब है तुम्हारा माइक्रोस्पोर जो है, जो इमेच्योर पोलन है, वो टेट्राड स्टेज में होना चाहिए या तो बाई न्यूक्लियर स्टेज में होना चाहिए, विच विल इंड्यूस ग्रेटर चांस ऑफ हैविंग हाप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। Anthers at a very young stage with microspore mother cells or ectrads, and late stages with binucleate microspore usually not suitable for एंड्रोजेनेसिस। जो एंथर बहुत ही यंग स्टेज में है या तो बहुत लेट हो गया है, लेट स्टेज में है, सेक्स मैच्योर हो गया है पूरा की पूरा, वो यूज़ नहीं कि करना चाहिए। However, maximum production of androgenic haploids
The suitable stage of microspore development is dependent on plant species and has to be carefully selected. सो मैक्सिमम एंड्रोजेनिक हाप्लॉइड करने के लिए हम लोग को देखना होगा वो सूटेबल स्टेज जिससे हम लोग का पॉलिन डेवलपमेंट होता है अच्छे से, और वो पॉलिन से हम लोग हाप्लॉइड प्लांट जनरेट करेंगे. फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द डोनर प्लांट, ये तो है तुम्हारा जिससे हम लोग एंड्रोजेनिस करेंगे, जिसका पॉलिन से करेंगे उसको अच्छे तरीके से उसका जो कंडीशंस है वो मेंटेन किया जाता है. ये सेम चीज़ हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन में भी किए हैं. प्लांट्स को 3 महीने के लिए कंट्रोल कल्चर कंडीशन, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए. प्लांट का भी तो इन्फेक्शन होता है, जैसे क्राउन गॉल डिजीज़, हेयरी रूट डिजीज़, बहुत तरह का डिज़ होता है. एक डिज़ है जिसका साइंटिफिकली का नाम याद नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली हम लोग का घर में हुआ है. एक मैंगो प्लांट था, उसका मैंगो नहीं होता था, उसका फ्रूट नहीं होता था. सिर्फ क्या होता था, जिस टाइम में फ्रूटिंग सीजन होता है, पॉलिनेशन सीजन होता है, उस समय में उसका पेड़ से एक अजीब किस्म का एक जूस तरह का चीज़ जो कि शुगर कंटेंट है, वो मालूम चला कि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा एंट्स लग रहा था, वो गिर रहा था एक रस के जैसा. ठीक है, तो वो भी एक डिजीज़ है. तो बहुत सारा डिजीज़ होता है, तो इसीलिए जिस प्लान को हम लोग इतना मुश्किल से हम लोग करेंगे, एंथर कल्चर एंड्रोजेनेसिस करेंगे, तो वो प्लान को अच्छे कंट्रोल कंडीशन में रहना चाहिए. ओके, ताकि कोई डिजीज़ ना हो जाए. ओके, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा ओके करने के बाद, उसका भी तो वही कंडीशन होने वाला है. ओके, क्योंकि ये तो हम लोग कमर्शियल इम्पोर्टेंस के लिए ही हम लोग कर रहे हैं. ओके, एक तरह का बिजनेस, और बोल सकते हो एक तरह का बिजनेस या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस बोल सकते हो, जिससे हम लोग का इन्वायरमेंट नुकसान नहीं होगा या यहाँ पर इम्प्रूव होगा. ओके, so the plants grown under best natural environmental conditions like light, temperature, nutrition, CO2, with good anthers and healthy microspores are more suitable as donor plants. Flowers obtained from young plants at the beginning of the flowering season are highly responsive. देखो, अच्छे तरीके से जो कंडीशंस है वो तो होना चाहिए. लाइट, सुटेबल लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, उसका एंथर का क्वालिटी गुड होना चाहिए, हेल्दी माइक्रोस्पोर होना चाहिए, हेल्दी पॉलेंस होना चाहिए. दे विल बी यूज एज डोनर प्लांट्स. यहाँ पर बता रहा है कि फ्लावर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम यंग प्लांट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्लावरिंग सीजन आर हाईली रेस्पॉन्सिव. जिस यंग प्लांट से हम लोग फ्लावर्स को ऑब्टेन कर रहे हैं, जस्ट ब्रीडिंग सीजन से पहले, थोड़ा पहले, शुरुआत से उस फ्लावर को ऑब्टेन करने के बाद उससे हार्बल प्लांट बहुत अच्छे तरीके से एंड्रोजेनेसिस हो सकता है. The use of pesticides should be avoided at least for 3 to 4 weeks preceding sampling. जब हम लोग पॉलिन कल्चर करेंगे, ओके, तब एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ता पहले हम लोग को पेस्टिसाइड्स यूज़ करना बंद कर देना चाहिए. ओके, अदरवाइज इट विल इंटरफेयर द पॉलिन डेवलपमेंट, विल इंटरफेयर योर टिश्यू कल्चर, इट विल इंटरफेयर योर हार्बल प्रोडक्शन. ओके, फिर है प्री ट्रीटमेंट ऑफ एंथर्स. प्री ट्रीटमेंट ऑफ एंथर्स मतलब एंथर्स को किस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाए विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. जैसे कुछ केमिकल्स हैं दैट आर नोन टू इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस. तो देयर आर सर्टेन केमिकल्स विच आर नोन टू इंड्यूस पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है, क्लास 12 में पढ़े हो ये बात तो प्राय ये चीज़ तो क्लास 12 में आता है क्वेश्चन में. पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द एग्स कैन बी डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रायो विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म. तो ये एक थोड़ा एक्सेप्शनल टेक्निक है. यहाँ पर कोई जो मेल का जो गैमेट्स है वो फर्टिलाइज नहीं करता एक सेल को,
और एक सेल रिप्रोडक्शन डिवीजन कर कर न्यू बेबी प्लांट को बनाता है. सो इट इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कैन से. पार्थेनोजेनेसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट विल हेल्प द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता. फर्टिलाइजेशन के बिना मतलब विदाउट यूजिंग द सेक्स सेल ऑफ मेल, पॉलिन के बिना के जरिए पॉलिन के छोड़कर भी ये ग्रो करता है, डिफर्टिलाइज करता है, मतलब ग्रो कर कर न्यू प्लांट बनाता है. दैट इज़ कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस. तो वही चीज़ तो हम लोग केमिकल के ज़रिए भी कर सकते हैं by using chemicals like 2-chloroethyl phosphonic acid. 2-chloroethyl phosphonic acid जिसे हम एथरल कहते हैं. तो इस एक जो केमिकल है 2-chloroethyl phosphonic acid, ये केमिकल प्लांट्स को इंड्यूस करता है तो सो दैट दे कैन अंडरगो पार्थेनोजेनेसिस, दैट इज डिवीजन division of the sex cell without any indulgence of another sex cell for fertilization. Okay, so when plants are treated with this 2-chloroethyl phosphonic acid, multinucleated pollens are produced. ये दिखा गया है कि जब प्लांट्स को इस इथरल जैसे जिससे हम लोग कह रहे हैं 2-chloroethyl phosphonic एसिड से जब ट्रीट करते हैं तब पॉलिन्स के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलिन्स हो जाता है. मतलब पॉलिन्स के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस दिखा जाता है. जब हम लोग उसे कल्चर करेंगे फर्दर तो वो पॉलिन का डिवीजन बढ़ाता है और एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो जाता है. Well, certain temperature also influence your androgenesis process. In general, when the birds are treated with cold temperatures 3 to 6 degrees Celsius for about 3 days, induction occurs to yield pollen embryos in some plants. कुछ plants है, उस plants का जो एंथर है या फ्लावर बर्ड जो है, उस एंथर का उस फ्लावर बर्ड को अगर हम लोग कोल्ड टेम्परेचर से अगर ट्रीट करते हैं 3 डेज़ के लिए फॉर 3 डेज़, इट इंड्यूस योर हाप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन. ओके, एंड्रोजेनेसिस के लिए अच्छा है. कौन कौन सा प्लांट में ऐसा होता है जो इसका जो फ्लावर बर्ड है 3 दिन के लिए अगर हम लोग उसे 3 to 6 डिग्री सेल्सियस में अगर पुट किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली पॉलिन एम्ब्रायो फॉर्मेशन कर सकता है. जैसे डैटूरा, जैसे बंगाली में हम लोग धूतरा कहते हैं, जो शिव पूजा के काम में आता है ना, वो जो फल होता है वो माला बनता है. जैसे हिंदी में क्या कहते हैं वो देख लेना. डैटूरा, निकोशियाना मतलब टोबैको प्लांट. Further induction of androgenesis is better if anthers are stored in low temperature prior to culture. कल्चर करने से पहले अगर एंथर को लो टेम्परेचर में रखा जाता है कुछ समय के लिए, दैट ऑल्सो एबल टू इंड्यूस द हाप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन मोर इजीली, जैसे कि मेज प्लांट में और राई प्लांट में किया गया है. There are also reports of pre-treatment of anthers of certain plant at high temperature stimulate androgenesis in some species. कुछ प्लांट में हाई टेम्परेचर में भी हाईली रिस्पॉन्सिव दिखा गया है एंड्रोजेनेसिस के लिए, जैसे ब्रासिका प्लांट में, कैप्सिकम प्लांट में दिखा गया है. तो डिपेंड कर रहा है कौन सा स्पीसीज में यूज़ किया गया है. ये सब रिसर्च पेपर आर्टिकल्स जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग इस फील्ड में हैं, एक्सपेरिमेंट करने से ये लोग देखे हैं कि इस तरह के टेम्परेचर में ग्रो कर रहा है. ओके, इफेक्ट ऑफ लाइट इफेक्ट भी करता है. इन जनरल प्रोडक्शन ऑफ हाप्लॉइड इज बेटर इन लाइट कंडीशन में हाप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करना बहुत अच्छा है. So however certain plants are there which can grow well in light as well as in dark.
इसलिए हम लोग नॉर्मली लाइट फेज को ज़्यादा रखते हैं, 16 आवर रखते हैं 24 घंटे में, और 8 आवर्स डार्क फेज में रहते हैं इन कल्चर रूट्स। Isolated pollens appears to be sensitive to light, so low intensity of light promotes the development of embryos in pollen cultures. अब देखा गया है लाइट में तो रख रहे हैं, लेकिन लाइट का जो इंटेंसिटी है, जैसे हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन में कहते थे 3000 लाक्स, 3000 लाक्स लाइट इंटेंसिटी। सो 3000 लाक्स लाइट इंटेंसिटी में रखना चाहिए, जो कि एक ट्यूब लाइट में होता है, एक नॉर्मल ट्यूबलाइट में होता है। लेकिन यहाँ पे बता रहा गया है कि 16 आवर लाइट फेज में रखो, ठीक है, लेकिन उसका इंटेंसिटी कम होना चाहिए, बिकॉज पॉलेंस आर सेंसिटिव टू लाइट। तो इसीलिए लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इट शुड बी यूज टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोज इन पॉलिन कल्चर। नेक्स्ट बता गया है कल्चर मीडियम, किस तरह का कल्चर मीडियम यूज़ किया जाता है। नॉर्मली सब तरह का कल्चर मीडियम ही यूज़ किया जाता है, एंड द फाइटो हार्मोन्स दैट आर यूज लिटिल बिट दे आर मॉडिफाइड। जैसे हम लोग एम एस मीडियम यूज़ करते हैं, एम एस मीडियम मतलब मूरासीज एंड स्कूग मीडियम, वाइट्स मीडियम, एम एस मीडियम, वाइट्स मीडियम, निस्ट एंड निस्ट मीडियम, N6 मीडियम एंड B5 मीडियम। ओके, जैसे हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर में किया है, माइक्रो प्रोपागेशन किए हैं, वो इस तरह से ही हम लोग इस तरह का मीडियम यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, एक पर्टिकुलर मीडियम नहीं है जिससे हम लोग हाइप्लोइड प्लांट प्रोडक्शन कर सकें। ओके, अभी बताया गया है, ये अपडेटेड न्यूज़ है कि रिसेंट ईयर्स में वर्कर्स का स्पेशल मीडिया बनाया है था फॉर द एंथर कल्चर ऑफ सीरियल क्रॉप्स के लिए। वर्कर्स क्या किए थे, एक स्पेशल डिज़ाइन मीडिया बनाया है, इसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, उससे हाइप्लोइड प्लांट प्रोडक्शन किया था। सुक्रोज, नाइट्रेट, अमोनियम सॉल्ट, अमाइनो एसिड एंड मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर एंड्रोजेनेसिस। एंड्रोजेनेसिस करने के लिए सुक्रोज, नाइट्रेट, अमोनियम सॉल्ट, अमाइनो एसिड, मिनरल्स ज़रूरी है। इन सम स्पीसीज ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आर रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और साइटोकाइन लेने से हम लोग का कैलस फॉर्मेशन होता है, राइट। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से रूट इंडक्शन होता है, साइटोकाइन का कंसंट्रेशन ज़्यादा करने से सूट इंडक्शन होता है, राइट। एक चीज़ बताया गया है कि दो चीज़ अगर दिया गया जाता है तो रिसर्च करके दिखाया गया है कि एंड्रोजेनेसिस अच्छे से होता है, एस्कॉर्बिक एसिड और ग्लूटाथायोन। So addition of glutathione and ascorbic acid promotes androgenesis। ये कुछ प्लांट में, certain plant में देखा गया है, in certain plant when the anther medium is supplemented with activated charcoal, activated charcoal अगर दिया जाता है, चारकोल का मतलब मालूम है, कोल को विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है टू प्रोड्यूस दैट चारकोल। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल अगर यूज़ किया जाता है तो वो भी एंड्रोजेनेसिस को इंड्यूस करता है। सिमिलरली लाइक ग्लूटाथायोन एंड एस्कॉर्बिक एसिड also promotes androgenesis. It is believed that activated charcoal removes the inhibitors from the medium and facilitates the haploid production. Okay. तो ये हुआ एंड्रोजेंस के बारे में। गाइनोजेंस का बारे में उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि हाप्लॉइड प्लांट्स कैन बी डेवलप फ्रॉम ओवरी और ओव्यूल कल्चर। ओवरी और ओव्यूल कल्चर से हाप्लॉइड प्लांट बनाया जा सकता है, जस्ट लाइक पॉलिन से हम लोग बनाए हैं, तो वाई नॉट विथ ओवरी और ओव्यूल कल्चर। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रिगर द फीमेल गैमेटोफाइट of angiosperms to develop into a sporophyte। ये पॉसिबल है। फीमेल का जो गैमेटोफाइटिक सेल्स है जो कि ओवम है, जिसे हम मेगास्पोर कहते हैं, ये एंजियोस्पर्म में किया गया था पहले टू डेवलप स्पोरोफाइट। द प्लांट्स सो फॉर्म आर रेफर्ड टू एज गाइनोजेनिक हाप्लॉइड।
गाइनोजेनिक हैप्लॉइड फर्स्ट जो मेथड था वो डेवलप किया था 1976 को बाय सैन नोएम फ्रॉम ओवरी कल्चर ऑफ हॉर्डियम वुल्गारे. This technique was later applied for raising haploid plants of rice, wheat, maize, sunflower, sugar beet and tobacco. कैसे किया जाता है? सिंपली तरीके से जैसे हम लोग एंड्रोजेनेसिस किए वैसे ही हम लोग फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है पूरा की पूरा ओवरी को ले सकते हैं, या तो हम लोग ओव्यूल को लेकर भी कल्चर कर सकते हैं. सो इन विट्रो कल्चर ऑफ अनपॉलिनेटेड ओवरीज, हाँ ये ओवरी अनपॉलिनेटेड होना चाहिए, मेल कोई मेल का पॉलिन से यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं करना चाहिए, नहीं तो वैसे ही सेम प्लांट हो जाएगा जैसे हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन में करते हैं. सो इन विट्रो कल्चर्स ऑफ अनपॉलिनेटेड ओवरीज और ओव्यूल्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड व्हेन एंथर कल्चर्स गिव राइज अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाफ्लॉइड प्लांट. इसका मतलब ये है जब हम लोग एंथर कल्चर से जरिए हाफ्लॉइड प्लांट बना रहे हैं, अगर अच्छे से रिजल्ट नहीं आया, सक्सेसफुल रेट नहीं आया उस एंथर कल्चर से, तब हम लोग ओवरी कल्चर और ओव्यूल कल्चर करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्लांट टू इंड्यूस गाइनोजेनेसिस. तो गाइनोजेनेसिस पहले नहीं किया जाता है, पहले एंड्रोजेनेसिस किया जाता है. अगर एंड्रोजेनेसिस में सक्सेस नहीं आता उतने अच्छे से, फिर हम लोग उस प्लांट्स के से गायनोजेनेसिस करते हैं, दैट इज कल्चरिंग ऑफ द ओवरी और ओव्यूल फ्रॉम दैट प्लांट. ओके, वेयर एंथर कल्चर गिव्स अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट. तो इसका प्रोसेस क्या है? सिंपली है, क्या हुआ इसका, थोड़ा अलग हो गया. wait, okay, so I have missed that page. लग रहा है मैं यो पेज मिस कर चुका हूँ, एक बार देखता हूँ. ये 544 है, ये 542 है, सो 543 का पेज हम लोग मिस कर चुके हैं. ठीक है, नो कोई बात नहीं, मैं इसको ख़त्म करूँगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है. सो क्या किया जाता है कि द फ्लावर बर्ड्स आर फर्स्ट कट डाउन. फ्लावर का जो बर्ड है उसे कट डाउन किया जाता है, एक्साइज्ड 24 to 48 आवर्स प्रायर टू एंथेसिस. एंथेसिस का मतलब, सॉरी ये टर्म को लिखना पड़ेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है. तो बताया जा रहा है कि जो फ्लावर बर्ड है, जो फ्लावर का जो बर्ड होता है जिसके अंदर अभी उसका उसका अंदर जो फूल है वो अभी ब्लूम नहीं किया, तो वो फ्लावर बर्ड को कट डाउन किया जाता है 24 to 48 आवर्स प्रायर टू एंथेसिस. एंथेसिस का मतलब है द पीरियड व्हेन अ फ्लावर इज फुल्ली ओपेंड एंड बिकम फंक्शनल. एंथेसिस का मतलब है जब वो फूल पूरा खिलेगा, ओके, और वो फुल्ली फंक्शन करना शुरू कर देगा, मतलब पॉलिनेशन करना शुरू कर देगा, उसे हम एंथेसिस कहते हैं. सो बिफोर एंथेसिस, फ्लावर का ब्लूम होने से पहले 24 to 48 आवर्स से पहले हम लोग फ्लावर प्लॉट को काट देंगे. ओके, फिर क्या करेंगे? आफ्टर removal of the calyx, corolla and stamens, the ovaries are subjected to surface sterilization. कैलिक्स, कोरोला, ये सब क्या है? कोरोला एक्चुअली जो फ्लावर का जो पीटल्स होता है, फ्लावर पीटल्स को एक्चुअली साइंटिफिक भाषा में कोरोला कहते हैं. तो फ्लावर का जो पीटल्स है, बंगाली में पाबड़ी कहते हैं, फूलेर पाबड़ी. सो फ्लावर का जो पीटल्स है वो पीटल्स वाला पार्ट को रिमूव कर देंगे.
फिर कैलिक्स को रिमूव कर देंगे। कैलिक्स का मतलब जो हरा वाला पार्ट रहता है फ्लावर के ठीक नीचे, लीफ जैसा स्ट्रक्चर, उसे हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स का अच्छा नाम है सेपाल्स, जो फ्लावर के ठीक नीचे रहता है, ठीक इस तरह से फिर फ्लावर होता है। ओके, वो लीव्स नहीं है, इसे सेपल्स कहते हैं। तो वो उसको भी सेपरेट कर देंगे। एंड द मेल स्टैमेंस, स्टैमेंस का मतलब है मेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब वो एंथर और फिलामेंट जो है उसे भी रिमूव कर देंगे। और सिर्फ ओवरी को हम लोग सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे, राइट। Now the ovary with cut end at distal part of pedicel, at distant part of pedicel is inserted to the solid culture medium। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह है। ओके, ये तुम्हारा ट्यूब हो गया, ये तुम्हारा, सॉरी अच्छे से डायग्राम नहीं कर पाए, कोशिश करूँगा फिर से अच्छे से करने से। तो ये तुम्हारा ओवरी है, ये पार्ट तुम्हारा स्टिग्मा है। ओके, ये तुम्हारा ओवरी पार्ट है, इसके अंदर ओव्यूल्स है। इस पार्ट को हम लोग सरफेस स्टेरिलाइज करेंगे, लेकिन इसके जो नीचे जो स्टिक जैसा रहता है, स्टेम जैसा, ये अब मैं अलग कलर से कर रहा हूँ, इसे हम पेडिसेल कहते हैं। यहाँ पर सेपल्स रहता है इसके पास आसपास, उस सेपल को रिमूव कर देंगे। ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल्स, अनफर्टिलाइज्ड एग्स। तो ये ओवरी जो है विथ स्टिग्मा और पेडिसेल, ये वाला पेडिसेल है, इसे हम यहाँ से कट कर देंगे थोड़ा इंक्लाइन तरीके से, और फिर हम लोग सॉलिड कल्चर मीडियम में इसे पोर करेंगे, राइट। Whenever a liquid medium is used, ovaries are placed on a filter paper and allowed to float over the medium विथ पेडिसेल इंसर्टेड थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर हम लोग लिक्विड कल्चर करते हैं तो लिक्विड कल्चर में क्या किया जाता है, एक फ़िल्टर पेपर लिया जाता है, इस तरीके से एक फ़िल्टर पेपर लिया जाता है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखाया ताकि समझ में आए। और ये फ़िल्टर पेपर में क्या होगा, ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, ये ओवरी ऊपर में रहेगा, ये ओवरी ऊपर में रहेगा। और फिल्टर पेपर को हम लोग पियर्स करेंगे, थोड़ा एक होल बनाएंगे, छेद बनाएंगे, वहाँ वहाँ पर वो पेडिसेल वाला डिप रहेगा, मतलब मेरा ओवरी ऊपर रहेगा, तैरेगा, फ्लोट करेगा, और पेडिसेल नीचे रहेगा, जो कि लिक्विड मीडियम में वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। ये जस्ट सपोर्टिंग मटेरियल के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये जस्ट सपोर्टिंग मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि ये जो पेडिसेल है, पेडिसेल जो यहाँ से पेडिसेल है, ओके, ये वाला एक्चुअली फ़िल्टर पेपर ये सपोर्ट करता है ताकि वो तैर सके लिक्विड मीडियम में ओवरी। ओके, सो इट इज़ सेइंग that if you are using a liquid medium, the ovaries are placed over a filter paper or allowed to float over the medium with pedicel inserted through the filter paper। और सॉलिड मीडियम में तो कोई फ्लोट करने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली पेडिसेल का जो छोटा पार्ट है वो हम लोग इंसर्ट कर देंगे और उस वहाँ से वो न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करेगा और कंट्रोल कल्चर कंडीशन में हम लोग रखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ गायनोजेनिक हैप्लॉइड्स इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन प्लांट्स विथ मेल स्टेराइल जेनोटाइप। गायनोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जिस प्लांट में मेल स्टेराइल जेनोटाइप है, मतलब मेल फर्टिलाइज नहीं कर पाता फीमेल प्लांट को, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग फीमेल को ही रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही कल्चर करेंगे, हम लोग वो होमोजाइगस लाइन मेंटेन करेंगे। फॉर सच प्लांट्स दिस टेक्निक इज सुपीरियर देन एंथर कल्चर टेक्निक।
लेकिन इसका भी कोई लिमिटेशन होता है, इसका भी लिमिटेशन है इस गायनोजेनेसिस का। क्या क्या लिमिटेशन है? द डाइसेक्शन ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवरीज एंड ओव्यूल्स आर रैदर डिफिकल्ट। मतलब एंथर से हम लोग पॉलिन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं ग्लास रॉड के ज़रिए, लेकिन अनफर्टिलाइज ओवरी से डाइसेक्ट मतलब उसको काट कर ओव्यूल्स को काट कर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है हम लोग ऊंड कर सकते हैं और उस ऊंड से हम लोग का ऊंड कैलस हो जाएगा, और ऊंड कैलस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है जिसके जरिए क्या होगा, डिप्लॉयड प्लांट हो जाएगा, नॉर्मल प्लांट हो जाएगा, हम लोग का हाप्लॉयड प्लांट मेंटेन नहीं होगा। सेकेंड जो प्रॉब्लम है, प्रेजेंस ऑफ ओनली वन ओवरी पर फ्लावर, एक ही फ्लावर में एक ही ओवरी रहता है, इट इज़ अनदर डिसएडवांटेज। कुछ कुछ प्लांट है जिसका ओवरी मल्टीपल ओवरी रहता है, जैसे हम लोग ने कुछ प्लांट्स देखे हैं, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे प्लांट है, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में तो एक ही फ्लावर में एक ही ओवरी होता है। दैट इज़ द डिसएडवांटेज। अगर कंपेयर किया जाए एंथर कल्चर से, एंथर तो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो गायनोजेनेसिस अच्छा है, किसके लिए अच्छा है? फॉर प्लांट्स विथ मेल स्टेराइल जीनोटाइप्स, राइट। तो हम लोग इतने तक ही क्लियर कर रहे हूँ, मतलब आई हैव डन माई लेक्चर नाउ। सो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो एंड्रोजिनिस मतलब हाप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन के लिए ही पार्ट होगा, लेकिन जो पार्ट बचा है जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर होमोजाइगस प्लांट कैसे बनाएंगे वो सब, और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कुछ क्रॉप्स है जिसका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसका जो हाप्लॉइड प्लांट बनाया है उसका भी लोकल नाम है, जो प्लांट खरीद सकते हैं हम लोग उस क्रॉप को, वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोग गूगल मीट के ज़रिए हम लोग क्लास भी करेंगे, गूगल मीट के ज़रिए हम लोग क्लास करेंगे, और देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर के बारे में, तो प्लीज़ यू जस्ट कमेंट ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, इफ़ एनी प्रॉब्लम ऑकर्स।